अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था फाइनाइट एलिमेंट मेथड और उसमें हमने उसको सॉल्व किया था फॉर दी ट्रसेस। और आज हम इसको इसी मेथड को कंटिन्यू करेंगे और अप्लाई करेंगे फॉर बीम्स एंड फ्रेम्स। जो ओनली डिफरेंस है बीम्स और फ्रेम्स में वो आपका आता है एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स की फॉर्मुलेशन में। तो एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स हम बनाते हैं फॉर बीम एंड द फ्रेम्स, वो आपके पास ये मैट्रिक्स बनती है। फॉर फ्रेम्स इट इज 6x6 मैट्रिक्स, 6 rows 6 columns, एंड फॉर बीम्स इट इज 4x4 मैट्रिक्स। क्योंकि बीम्स के हर नोड पे आपके पास दो अननोन होते हैं, तो दो अननोन्स के लिए आपके पास चार बनते हैं। जिस तरह अगर फ्रेम केस ऑफ फ्रेम्स आपके पास हर नोड पे तीन अननोन होते हैं, जिसमें आपके पास एक्स एक्सिस में फोर्स, वाई एक्सिस में फोर्स और तीसरा प्लस मोमेंट होता है। तो इसी तरह तीन वैल्यूज एक नोड पे, तीन अननोन दूसरे नोड से, टोटल आपके पास 6x6 की मैट्रिक्स बन जाती है। तो जो एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स होती है फॉर फ्रेम्स के लिए वो आपके पास यहाँ पे साइड में शो हुई है। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ए ई ओवर एल इंटू जीरो जीरो इंटू माइनस ए ई ओवर एल इंटू जीरो जीरो एंड द वैल्यूज ऑफ 12 over L cube into 6ci over L square, 6ci square into 4ei over L, and so on. Accordingly, the rest values are repeated in the next steps. Just like trusses, once we form this 3 cross 3 matrix, we just take the negative sign for the first two columns and repeat the last two columns as it is. Just changing the values of 4ei with 2ei over L. While in case of beams, these two columns or the first two rows that contain the values of E A over L, they all are excluded because there is a no axial force in case of beams. So we just skip this value from the element stiffness matrix and we are left with the 4 cross matrix 4. And we are left with the element stiffness matrix for beams as 12 ei over L cube, 6 ei over L square, 6 ei over L square into 4 ei over L. And accordingly, the minus 12 ei over L cube into 6 ei over L square minus 6 ei over L square into 2 ei over L, and so on the last four values. So the only basic difference between beam frames and trusses is the formulation of the element stiffness matrix. Rest of the all the procedures and all the steps for all the beams, frames and trusses is the same as it is. Let's see an example of the beams in which we apply these methods. So assume that we are given with the beam having a fixed support at point A and a roller support at point B and a roller support at point C. While the span A to B carry a UDL load of 1 kN per meter and total span length is 9 meters. While the span B to C, it has a load of 10 kilonewton at the center and the span length is given as 3 meters. And we are required to find out the deflection and the rotation at the point B and the reaction at all the supports, that is A, B and the C, and we are required to draw the later on shear force diagram and bending moment diagrams as well. So just like the previous steps, first the very first step we are going to find out the values of the element stiffness matrix for each member or for each span. And we will consider the span wherever we have a support. Like if we have a support at point B, so one span will be A to B and the span will be B to C. And let's call this span A to B, denote this member as A and the member B as the span B to C. While node A is given as the numbering of the 1, B is given as 2 and C is given as the 3. So for the first member element stiffness matrix, first of all we will find out the value of 12 EI over L cube, as the value of EI is not mentioned here, so it will be taken as constant. And the length of the member is given as 9 meters, so we are going to take the cube of the 9
and once we divide 12 with the cube of the 9, we will get the value of 0.016 EI. And the other value that we are needed is the value of the 6 EI over L square, and if we find out that value comes out to 0.074, और इसी तरह हम आप बाद में 4 EI over L की वैल्यू फाइंड करेंगे और 2 EI over L की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। जब आपके पास इसकी वैल्यूज आ जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, इनकी एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स लिखनी है। तो आप उसके पास लिखेंगे K1 2 फॉर मेंबर ए, आपके पास K1 2 क्या हो जाएगी ई आई ओवर एल, क्योंकि यहाँ एल आपने ऑलरेडी इसके अंदर मेंशन कर दिया 12 ई आई ओवर एल क्यूब और 6 ई आई ओवर एल स्क्वायर के अंदर, तो यहाँ पे एल क्यूब क्या है, यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ आपके पास आ जाएगा ये ई आई और बाद में आपके पास मैट्रिक्स स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपके पास 12 ई आई की वैल्यू आ जाएगी, ई आई हमने सब में से कॉमन ले लिया, यहाँ पे जितने भी है सब के अंदर आ रहा था, पीछे आपके पास वैल्यू क्या रहती है 0.016, इसके साथ 6 आई वाली वैल्यू लिखते होते हैं हम, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.074, इसी तरह उसके डायगोनल में 0.74 और साथ में आपके पास वैल्यू आ जाती है 4 ई आई ओवर एल की, उसकी वैल्यू क्या आती है 0.44। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं कि इसकी जो फर्स्ट कॉलम है इसकी वैल्यूज के साथ नेगेटिव साइन चेंज करते हैं, उसके साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव हो तो उसको नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करते हैं। इसी तरह सेकेंड कॉलम में क्या करेंगे, हम सिर्फ 4 ई आई ओवर एल की वैल्यू क्या इसको हाफ कर देते हैं, इसको हम 2 ई आई ओवर एल की वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। तो जब आपके पास इसकी वैल्यू आ जाए तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इसका वैल्यूज का ट्रांसपोज ले लेते हैं। जो आपके पास यहाँ पे 4 वैल्यूज बची रहती हैं तो सेकंड रो में आती हैं, उनका ट्रांसपोज लेके हम इधर ले आते हैं, और इसी तरह बाकी इस वैल्यूज को फिर से साइन चेंज करके नेक्स्ट लास्ट 4 वैल्यूज उसकी मेंशन कर लेते हैं। अगर आपको याद नहीं भी रहता है किसके साइन चेंज करने हैं किसके नहीं चेंज करने हैं, तो आप इसका जो फार्मूला है जो हमने लास्ट स्टेप में लिखा था एलिमेंट स्पेक्ट्रम मैट्रिक्स का, उसको याद कर लें, अकॉर्डिंगली इसके अंदर जो साइन मेंशन है उसके मुताबिक इसके अंदर वैल्यूज इनपुट कर लें। अब क्योंकि ये मेंबर 1 to 2 आपके पास 1 to 2 के दरमियान है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले आपके पास V1 आ जाएगा, सेकंड पे आपके पास क्या आ जाएगा θ1, क्योंकि ये बीम्स है तो यहाँ पे आपके पास V1 U1 नहीं आएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा V1 θ1, क्योंकि बीम्स के अंदर आपके पास एक्सियल फोर्स नेग्लिजिबल होती है या ना होने के बराबर होती है, तो इसलिए यहाँ पे U1 की जगह क्या आ जाएगा θ1 आ जाएगा। इस तरह V2 एंड θ2 और इस तरह आपके पास उसके हॉरिजॉन्टल में भी लिख लें और उसके डायगोनल में उसको मेंशन कर लें। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में आप उसकी मेंबर बी की वैल्यूज के अंदर फाइंड आउट कर लें। फॉर मेंबर बी आपके पास 12 आई एल क्यूब की वैल्यू क्या आती है, 6 आई और एल स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है 4 आई और 2 आई और, जब उसकी वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो जाए तो इस तरह आप उसकी एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स लिख लें। जब ये एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स लिख लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स लिखनी है, जस्ट लाइक जिस हमने ट्रसेस के अंदर लिखी थी, क्या हम ऊपर मेंशन कर देंगे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी V1 θ1 V2 θ2 V3 θ3, आपके पास x में भी आ जाएगा और y में भी आ जाएगा। इस तरह जो भी वैल्यूज आपके पास V1 और V1 में आती हैं ऊपर दोनों कॉलम में उनको एडअप होती जाएंगी, अगर वैल्यू नहीं आती तो क्या हो जाएगी एज इट इज आ जाएगी। जैसे यहाँ पे V1 क्या है आपके पास वैल्यू क्या है 0.016, और दूसरे मेंबर बी में क्या है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है V1 से रिलेटेड, यहाँ पे सारी V2 और V3 की है, तो यहाँ पे क्या होगी सिर्फ एक ही वैल्यू आ जाएगी, वो क्या है 0.16, वो वहाँ पे क्या आ जाएगी एज इट इज वैल्यू आ जाएगी 0.016। इसी तरह फिर हम नेक्स्ट स्टेप में आपके पास V2 है, वहाँ पे एडिशन हो रही होगी, क्योंकि V2 आपके पास मेंबर 1 2 जो है आपके पास मेंबर 1 में भी रिपीट हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे V1 θ2 इस तरह 2 में भी आपका रिपीट हो रहा है V2 एंड θ2, उनकी वैल्यूज आपके पास ऐड अप करके या सब्ट्रैक्ट करके जो भी रिजल्ट आ रहा होगा वो आप यहाँ पे मेंशन करें। इस तरह V3 और θ3 1 के साथ इसका कोई लिंक नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0 0 आ जाएगा, बीच में कोई लिंक भी नहीं है। तो इसी तरह आप बाकी वैल्यूज को कंप्लीट करें। जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपने अप्लाई करनी है स्ट्रक्चर स्टिफनेस मैट्रिक्स विच इज P इज इक्वल टू KD। तो आपके पास P क्या है, आपके पास ग्लोबल या लोड वेक्टर मैट्रिक्स होती है, जिसमें आपके पास क्या आ जाएगा P1y M1, यहाँ पे P1x और P1y नहीं आएगा लाइक ट्रेसेस, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा P1y और M1, P2y और M2, P2 P3y और M3, और इस तरह आपके पास K की वैल्यू एज इट इज रिपीट हो जाएगी ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स और मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके पास D के साथ, D के आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कि आपके पास क्या हो जाएगा V1 θ1 V2 θ3 V3 θ3 के साथ।
इस केस में आपके पास अगर हम यहाँ पे देखें नोड 1 पे ए पे आपके पास क्या, आपके पास आपको कोई वैल्यू नहीं पता कि यहाँ पे लोड कितना आ रहा हो। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे P1Y भी अननोन है, जो कि आपके पास रिएक्शन होगा यहाँ पे फिक्स बोर्ड पे ए का, वो भी अननोन है। और इसी तरह आपके पास जो मूवमेंट होगा ए पे वो भी अननोन है, वो भी एज इट इज। इस तरह बी भी हम देखें तो हमें यहाँ पे क्या है, रिएक्शन अननोन है, लेकिन हमें पता है कि रोलर स्पोर्ट मूवमेंट क्या होता है, वो जीरो होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, M2 की वैल्यू क्या है, जीरो। इस तरह हम सी में भी देखें तो वहाँ पे भी उसकी वैल्यू क्या है, M3 की जीरो है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे M2 भी हमारे पास जीरो है, M3 भी जीरो। और अकॉर्डिंग इससे हम देखेंगे तो हमें पता है कि फिक्स बोर्ड पे ना डिफ्लेक्शन होती है ना रोटेशन होती है, थीटा भी जीरो हो जाएगा और V1 भी जीरो हो जाएगा। इस तरह V2 जो आपके पास रोलर स्पोर्ट है उसमें क्या है, रिएक्शन आपके पास जो स्पोर्ट आपके पास कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे रोटेशन आ सकती है थीटा 2, तो वो हमारे पास क्या है, अननोन है। इस तरह V3 क्या है, वो भी जीरो है, और थीटा 3 क्या है, वो भी आपके पास अननोन है। जब आपके पास इसकी वैल्यूज आ जाएं तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसका कंपेटिबिलिटी अप्लाई करना है और नॉन्स को और अननोन्स को सेपरेट आउट करना है। तब हम सेपरेट आउट किस तरह करेंगे इसको, तो आपके पास वही है कि आप यहाँ पे जिनकी वैल्यूज पता है आपके पास, जैसे ये M2 की पता है और M3 की वैल्यू जीरो पता है, तो ये दो रोज के आपके पास नॉन्स है। बाकी जितनी चार रोज के हैं आपके पास अननोन है। तो आपके पास एक मैट्रिक्स बन जाएगी 4x4 की, और दूसरी बन जाएगी आपके पास 2x2 की। हम जब इसको स्प्लिट करेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स बनेगी, इसमें आप लिख सकते हैं कि M2 और M3 जो आपके पास नॉन मैट्रिक्स थी, क्या आपको पता है कि M2 पे भी मूवमेंट जीरो होगा और M3 पे भी मूवमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगी, EI इंटू जो भी आपके पास करस्पॉन्डिंग उसकी इसकी वैल्यूज आती हैं 1.777 0.667 इंटू थीटा 2 इंटू थीटा 3, और साथ में आपके पास ऐड हो जाएंगे फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे इसमें आपके पास फिक्स्ड एंड मूवमेंट ऐड अप होते हैं इन केस ऑफ बीम्स। तो उसके लिए जो आपके पास मैट्रिक्स इक्वेशन होती है वो आपको यहाँ मेंशन की हुई है। तो वो क्या होती है, Q इज इक्वल टू AD प्लस QF, और QF मीन मेंबर एंड फोर्सेस या मेंबर फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स आपके पास जो होते हैं। तो जब हम इसको स्प्लिट कर रहे थे लास्ट स्टेप्स में, यहाँ पर देखें तो जब हम ये M2 को यहाँ पे लिखेंगे तो उसके क्या लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई क्या हो रहा होगा, सबसे पहले ये 0.0740 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो इसको यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। इस तरह दूसरा वैल्यू तो आपके पास थीटा 1 के साथ जीरो मेंशन होगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा, थर्ड भी आपके पास जीरो हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू किसकी आ जाएगी, ये 1.777 इंटू थीटा 2, ये आपके पास अननोन होगा। इस तरह आप 0.0667 मल्टीप्लाई करेंगे वो भी जीरो होगा माइनस के साथ, और लास्ट में आपके पास थीटा 3 के साथ वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.667 के साथ वैल्यू आ जाएगी। और इस तरह थर्ड में क्या M3 है, तो M3 में भी अकॉर्डिंगली वही होगा, इसके साथ 1.777 की बेस डाउन देखेंगे तो 0.667 होगा, जो आपके पास थीटा 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और इसी तरह थीटा 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा 1.771। तो यही वैल्यूज हैं जो कि हमने लास्ट स्टेप में या लास्ट मैट्रिक्स के अंदर नेक्स्ट स्टेप में हमने को मेंशन किया है। यहाँ पे ये 1.777 0.67 0.67 और 1.333। अब हमें पता था कि M2 की वैल्यू जीरो है, तो M3 की वैल्यू भी जीरो है, तो उसको हम जीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और बाकी मैट्रिक्स को आप थीटा 2 के साथ मल्टीप्लाई करके और उसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जितनी भी आपके पास फिक्स एंड मूवमेंट्स की वैल्यूज होती हैं यहाँ पे फॉर मेंबर A एंड B, फॉर B और C, इन वैल्यूज को सबसे पहले आप इस साइड पे ले आएंगे मैट्रिक्स की साइन चेंज करके, उसके बाद आप इस मैट्रिक्स का इनवर्स ले लेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगी थीटा 2 और थीटा 3 की वैल्यू। इस तरह यहाँ पे यह मल्टीप्लाई और दूसरे साइड पे जाएगा तो क्या देगा, वो डिवाइड या चला जाएगा, वो क्या देगा 1/EI की फॉर्म में जाएगा। जब आप उसका इनवर्स लेंगे इस मैट्रिक्स का, तो ये इनवर्स की वैल्यूज आती है जहाँ पे एलिमेंट को मेंशन किया। अकॉर्डिंगली जब आप ये फिक्स एंड मूवमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास थीटा 2 और थीटा 3 की वैल्यू आ जाएगी 1/EI 0.771 into 2.243 के साथ। अच्छा, तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स आपने किस तरह लेने हैं, आपने उसी तरह फिक्स्ड एंड मूवमेंट के लिए आपने वही आपने कंसीडर करना है कि बोथ हैंड आपके पास फिक्स्ड है, उसके बाद आपने टेबल से देखना है कि फॉर यूडीएल लोड आपके पास फिक्स्ड एंड मूवमेंट की वैल्यू क्या आती है, WL² by 12 जो हमने
देखी थी फॉर स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड भी और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के साथ। तो जब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6.75। लेकिन जब ये थीटा 2 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास दो मेंबर के दरमियान फिक्स्ड मूवमेंट लेना है फॉर वन स्पैन ए टू बी के साथ भी और दूसरे स्पैन के साथ भी जो कि बी टू सी के साथ। तो जब ए टू बी है जब थीटा है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6.75। ये आपके पास क्लॉकवाइज में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो इसलिए यहाँ पे इसको मैंने लिखा है -6.75। इस तरह दूसरे इक्वेशन के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या आता है फिक्स्ड मूवमेंट का पी एल बाई एट। जब आपके पास यूडीएल लोड सेंटर पे डाल रहा हूँ तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है 3.75। अब ये एंटी क्लॉकवाइज में है तो इसलिए क्या हो जाएगा +3.75। ये भी आपके पास नोट क्या है 2 के अंदर है या आपके पास पॉइंट बी के साथ। तो अगर इसमें सिंप्लीफाई करूँ जो आपके पास बी में थी तो आपके पास पॉइंट ए था, इसके साथ आपके पास ये पॉइंट बी बन रहा था, दूसरी साइड पे बी है और जिस साइड पे क्या आपके पास पॉइंट सी। तो थीटा 2 क्या है आपके पास बेसिकली ये पॉइंट बी पे है, तो पॉइंट बी पे आपके पास क्या आ रही है दो मूवमेंट्स आ रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे एड अप हो जाएंगे अलजेब्रिकली। तो एक वैल्यू -6.75 है और दूसरी +3.75। जिस तरह जब पॉइंट सी पे चले जाएंगे जो कि करस्पॉन्डिंग टू थीटा 3 है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -3.75। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट हम नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हम पॉजिटिव लेते हैं या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हम पॉजिटिव लेते हैं। जब आपके पास थीटा की वैल्यूज आ जाएं उसके बाद आप इजीली इन फोर्सेस के रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए आप दूसरे इक्वेशन अननोन लाइक जैसे उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास वहाँ से रिएक्शन भी आ सकते हैं। दूसरा ये है कि आप उनके अंदर पहले उनके मेंबर के दरमियान आप उनकी फोर्सेस फाइंड आउट कर लें। तो जैसे लाइक हम मेंबर ए के साथ अगर करें तो उसकी फार्मूला क्या Q इज इक्वल टू के डी प्लस क्यू एफ जो सेम है वो हम लास्ट के लिए रिपीट करेंगे। आपके पास क्या आ जाएगा मेंबर ए बी इंटू एम बी ए इज इक्वल टू के वन की वैल्यूज जो फर्स्ट मेंबर ए के लिए हम लिखा था के वन टू के फर्स्ट फोर वैल्यूज इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा ए एंड थीटा बी और आई वुड से थीटा वन एंड थीटा टू। तो थीटा वन क्या था आपके पास फिक्स स्पॉट है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी और थीटा बी की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है वो क्या है 0.709/आई प्लस फिक्स्ड एंड मोमेंट जो अभी हमने कैलकुलेट की है फॉर मेंबर ए तो क्या है +6.75 है दूसरा क्या -6.75। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, एक आपको जी 6.92 आ जाएगी दूसरी -6.4। इस तरह आप सेम स्पीड आप नंबर बी के लिए रिपीट करेंगे तो आपके पास दूसरी वैल्यूज भी आ जाएंगी नंबर मोमेंट्स की तो क्या आ जाएगी 6.4। तो जब आपके पास ये मोमेंट्स की वैल्यूज सब आ जाए तो उसके बाद आपने क्या फाइंड आउट करना है इनके रिएक्शंस फाइंड आउट करना है। तो रिएक्शंस फाइंड आउट करने के लिए वही है कि आप नंबर एंड फिक्स्ड एंड मोमेंट्स जो आपके पास वैल्यूज आई हैं दैट इज 6.92 और दूसरे के आपके पास वैल्यू है 6.4 नेगेटिव वैल्यू इसको क्लॉकवाइज यहाँ पे शो करना है। उसको आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो उसके क्रॉस के ऊपर या बीम के ऊपर आप अप्लाई करें और किसी भी एक साइड पे सम ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 कर लें तो आपके पास दूसरे रिएक्शन की वैल्यूज आ जाएंगी दूसरे साइड पे। तो जब रिएक्शन की वैल्यू आ जाए तो उसके बाद आप समीशन एफ वाई फाइंड आउट करके दूसरी वैल्यूज का रिएक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह आप दूसरे मेंबर्स पे अप्लाई कर दें वही फिक्स्ड एंड मोमेंट जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई 6.4 और दूसरा एक आपके पास 0 है तो उसको मेंशन करें या ना करें आपकी बात है। तो एट द एंड आपने क्या करना है जो आपके पास एक बीम के ए पॉइंट पे तो एज इट इज आ जाएगा 4.56 और लेकिन पॉइंट बी पे जो आपके पास रिएक्शंस के हैं वो ऐड अप हो जाएंगे। एक आपके पास वैल्यू आ रही है 4.73 और 4.44 और दूसरी आपके पास आ रही है 7.13। ये जब दोनों ऐड अप हो जाएंगे तो आपके पास रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी 11.57 और इस तरह सी में आपके पास जो रिएक्शन है वो एज इट इज आ जाएगा 2.87। जब आपके पास ये रिएक्शन आ जाए तो उसके बाद आप उनकी एस एफ डी और डी एम डी डायग्राम्स ड्रा कर सकते हैं क्योंकि यह आपका स्ट्रक्चर क्या रिटर्न पता है आपको एंड देन आप यूजुअली सम ऑफ द फोर्सेस करके आप उसकी शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करने के बाद उसकी एस एफ डी और बाद में डी एम डी ड्रा करने के बाद। तो ये सेम प्रोसीजर है आपके पास जो ट्रसेस के लिए अप्लाई किया था वही हम बीम के लिए अप्लाई करते हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि आप उसकी एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स थोड़ी सी चेंज हो जाती है। और एक और केस कर लेते हैं बीम का, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें ये होगा कि हम बीम के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसमें आपके पास कोई एक आधी सपोर्ट भी
सेटल कार्ड होती है। सेटल मतलब कोई ना कोई स्पोर्ट हो गया जिसमें आपके पास डिफ्लेक्शन आ रही होगी या रोटेशन आ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस it is mentioned that the sport at node 2 which is the roller sport, it settles means that there is a deflection. A deflection is about 0.5 millimeters। और बाकी हमें स्पैन वही कि 1 to 2 के दरमियान आपका 6 मीटर उस पर लोड करना है 20 किलो न्यूटन। B to C में गिवन है उस पर लोड लग रहा है आपके पास 90 किलो न्यूटन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर के इधर भी आप कहेंगे तो सेंटर में ही है आपके पास। और ई आई की वैल्यूज आपके पास गिवन है वो कितनी वैल्यूज हैं 72,000 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसी तरह आप सबसे पहले आप उसकी एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स लिखेंगे फॉर मेंबर ए। इसी तरह फॉर मेंबर बी आप उसकी एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में आप उसकी ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स लिखेंगे जिसमें आप दोनों मैट्रिक्स को ऐड अप करके सिंगल मैट्रिक्स में उसको हम मेंशन आउट करेंगे। जब मैट्रिक्स बना ली तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं उसके लोड वेक्टर आप ड्रा कर लें, फाइंड आउट कर लें दोनों मेंबर्स के सेपरेटली। फॉर एलिमेंट ए आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों कंसीडर करेंगे, दोनों स्पोर्ट के पास फिक्स स्टैंड है। फिक्स स्टैंड मूवमेंट्स के लिए क्या होगा, डब्ल्यू आर स्क्वायर बाई 12 का फॉर्मूला यूज करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 60 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू आपके पास 60 आ जाएगी। इस तरह आप इसकी डायरेक्शन अगर फाइंड आउट करेंगे तो उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी 60 और 60 आ जाएगी। तो इनडायरेक्टली आपके पास की वैल्यू क्या आ जाएगी, P1 y क्या हो जाएगा -60, M1 y एम ए क्या हो जाएगा -60, P2 a क्या हो जाएगा अगेन -60 एंड M2 a क्या हो जाएगा आपके पास +6। इसी तरह आप सेम वैल्यूज आप मेंबर बी के लिए आप रिपीट करेंगे रोड वेक्टर्स बाय यूजिंग द सेम फार्मूलाज और द सेम टेबल्स। आप उसकी वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास P2y की और M2b P3 और M3 की वैल्यूज आपके पास आ जाएगी। तो जब आपके पास रोड वेक्टर्स की वैल्यूज आ जाए तो उसके बाद आप स्टिफनेस इक्वेशन लिख सकते हैं P इज इक्वल टू के डी के साथ। पी के आपके पास लोड वेक्टर है जिसकी वैल्यूज आपने पीछे फाइंड आउट की है। ये आपके पास ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स है जो हमने पीछे सेकंड स्टेप में हम इसको असेंबल कर इसकी की एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स के साथ। और डी के आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसमें हमें पता है कि V1 की वैल्यू क्या है 0 है। अब V1 0 क्या है क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या है पिन स्पॉट है नोड 1 में। पिन में क्या होता है आपके पास कोई भी आपके पास डिफ्लेक्शन या डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। तो θ1 की आपके पास अननोन है क्योंकि जिस पिन स्पॉट पे रोटेशन हो सकती है तो उसकी वैल्यू हमें नहीं पता। इस तरह V2 जो स्पॉट 2 नोड 2 है वहाँ पे क्या आपके पास रोलर स्पॉट है। तो रोलर स्पॉट में भी आपके पास कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती, लेकिन इस केस में कन्वेंशन है कि स्पॉट आपके पास सेटल करती है। सेटल कितना करती है 0.5 मिलीमीटर। तो आप 0.5 मिलीमीटर को जब सेटल कर रही है डाउनवर्ड तो उसका मतलब क्या है कि उसकी वैल्यूज क्या आ जाएगी माइनस के साथ आ जाएगी। तो हम इसको मेंशन कर देंगे -0.005। अब क्योंकि हम इसको जो मिलीमीटर्स हैं उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर, क्योंकि हमें जितने भी डायमेंशन की लेंथ गिवन है या स्पैन लेंथ गिवन है वो हमें मीटर्स में गिवन है। इस तरह θ2 हमारे पास अननोन होगा और हम जब 3 पे जाएंगे स्पोर्ट 3 पे विच इज अ फिक्स स्पोर्ट तो आपके पास क्या हो जाएगा वहाँ पे V3 भी 0 होगा और θ3 भी आपके पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। वाइल लोड वेक्टर्स की सारी वैल्यूज हमने पीछे लास्ट स्टेप में फाइंड आउट कर ली। तो अगेन उसके बाद आप कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस अप्लाई करेंगे। कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस अप्लाई करके आप रोटेशंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे एज इट इज जो भी आपके पास की वैल्यूज आती हैं θ1 और θ2 की। तो जब आपके पास अननोन वैल्यू आ जाए तो आपके पास इनडायरेक्टली आपके पास कंप्लीट हो जाता है पूरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसमें आपके पास दो ही अननोन थे। आपके पास θ2 अननोन था और दूसरा आपके पास θ1 अननोन था। जब θ1 और θ2 की वैल्यूज आ जाए कंप्लीट आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यूज आ गई। उसके बाद आपने सेम लास्ट एग्जांपल की तरह मेंबर फोर्सेस फाइंड आउट करनी है फॉर मेंबर ए एंड द फॉर मेंबर बी एज इट इज। जब आपके पास इनकी वैल्यूज आ जाए मेंबर फोर्सेस की तो उसके बाद आप उनके रिएक्शन निकालने हैं। रिएक्शन निकाल के आप उसकी एसएफडी ड्रा कर लेंगे और उसका उसकी आपकी बीएमडी ड्रा कर लेंगे। तो स्पोर्ट सेटलमेंट आ जाए अगर बीच में तो ओनली डिफरेंस कहाँ पे आता है आपके पास इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अंदर। यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को हम मेंशन कर लेते हैं कि हमें ऑलरेडी नोन है कि V2 की वैल्यू क्या हमारे पास 0.005 मिलीमीटर या जो भी आपके पास अननोन हो। इस तरह का आपके पास थीटा रोटेशन गिवन हो
तो आप वहाँ पे थीटा की वैल्यूज भी मेंशन कर सकते हैं कि हमारी प्रिडिक्शन है कि हमारे पास स्क्रीन के अंदर इतनी रोटेशन हो रही है ऐसे एक पर्टिकुलर पॉइंट के साथ। बाकी जितने भी स्टेप्स हैं या प्रोसीजर हैं वो आपके पास कैलकुलेशंस यहाँ पे शो की हुई हैं, उनको अपने टाइम पे ट्राई कीजिएगा और वेरीफाई कीजिएगा कि आप लोग ये सेम आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर कहीं पे कोई डाउट आता है, क्वेश्चन आंसर नहीं समझ आ रहा, तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी जितने भी मैट्रिक्स ऑपरेशंस हैं, ये मुझे उम्मीद है आप लोग आते होंगे कि इन्वर्स किस तरह लेना है मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किस तरह करना है, मैट्रिक्स एडअप कैसे होती हैं। इसको मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, तो आई होप कि आप लोगों की जो लास्ट कोर्स में आपने इसको पढ़ा होगा। बाकी ये आज के लिए इतना ही था। इसके अलावा अगर किसी कोई भी मतलब डाउट हो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द बीम्स बाय यूजिंग फाइनाइट एलिमेंट मेथड, तो काइंडली मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। That's all for today. Thank you very much. Allah Hafiz.